Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope all is well. Zair Hassan, physics teacher. Now we move to our today topic. Electric flux through a surface enclosing a charge. Let us calculate electric flux through a closed surface of sphere of radius r. Let us consider this surface in a form of sphere of radius r and containing a point charge q at its center as shown in fig. In order to calculate electric flux, we use a formula. We apply formula phi is equal to E vector dot A vector for calculation of electric flux. Because this is in a form of sphere, so we cannot apply this formula. This formula can be applied only if surface will be flat. To remove this difficulty, we divide the whole surface into number of patches. हम इस पूरी सरफेस को नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर पैच पर जो है उसका एरिया अगर फ्लैट उसकी सरफेस फ्लैट होगी तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. जस्ट लाइक अ फुटबॉल, इट्स मीन इट कंटेन white and black patches. So this sphere have also number of patches, n patches, and then we apply this formula on each patch, and then we calculate the flux of whole surface by adding flux of each patch. So let us calculate electric flux through a closed surface of sphere of radius r due to point charge q at its center as shown in fig. In order to apply this formula, phi E is equal to E vector dot A for calculation of electric flux. The surface should be flat. Surface should be flat. In order to remove this difficulty, we divide the whole surface into n patches of areas of magnitudes delta A1, delta A2, delta A3 up to so on and delta AN. हमने इस पूरी सरफेस को नंबर ऑफ पैचेस में एन पैचेस में डिवाइड कर लिया है, और हर पैच जो है क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है और उस पर सपोज कर रहे हैं कि उस पर surface should be flat, वो surface flat होगी, then we use this formula to calculate the electric flux. Suppose n is very large, बहुत सारे patches हैं, so each patch may be considered as a flat element of area. The corresponding vector areas are delta A1, delta A2 and delta A3, delta AN. हमने इसमें इस सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पहला एक पैच बनाया है जिस पर उसका एरिया वेक्टर जो है वो डेल्टा ए के बराबर है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो भी आउटवर्ड है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा. इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हर सिमत में है. डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, and vector area of this patch will be is equal to delta A. So there are n patches. We calculate flux of each patch. हम एक एक पैच का जो है एक एक एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और सबको सम अप करेंगे, और इस तरह से टोटल सरफेस का जो है फ्लक्स वो कैलकुलेट हो जाएगा. Suppose n is very large, so each patch may be considered as a flat element of area.
द करस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया, उस पर जो वेक्टर एरियाज हैं वो डेल्टा A1 है, फिर हमने एक पैच को नाम दिया डेल्टा A2 है, फिर तीसरे का डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, लास्ट वाले पैच को डेल्टा AN से डिनोट किया है। Direction of each vector area is along perpendicular drawn outward to the corresponding patches। आपने देखा है कि उसमें हमने हर पैच पर जो है वो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। फ्लक्स थ्रू each surface patch or element is separately calculated and then the sum of all will give up the required result। हम एक एक पैच का एक एक एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर सम अप करेंगे और हमें टोटल फ्लक्स जो है वो स्फेरिकल सरफेस का वो आ जाएगा। लेट अस कंसिडर E1 be the intensity of first patch or element, E2 be intensity of second एलिमेंट, E3 नेक्स्ट वन एंड अप टू सो ऑन En। क्योंकि हमने पूरी सरफेस को n पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से हर एक पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E1, E2, E3 अप टू सो ऑन En बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरियाज। किन किन वेक्टर एरियाज पे हैं? डेल्टा A1 एक पहला पैच है, फिर दूसरा जो है डेल्टा A2 है, तीसरा डेल्टा A3 है, लास्ट डेल्टा AN रिस्पेक्टिवली। Since electric intensity at the center of patch delta A1 is E1, therefore flux passing through the first patch or element is equal to। अगर हम पहले एक पैच की या एक एलिमेंट की बात करें तो उस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो E1 वेक्टर है और उसका एरिया वेक्टर जो है वो डेल्टा A1 है। तो उस पर हम फार्मूला लगाएंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इस फार्मूले से ये बनेगा फ्लक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फाई वन उसको नाम देंगे, तो ई वन वेक्टर डॉट डेल्टा ए वन वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 1। ये हमने एक फर्स्ट पैच का या फर्स्ट एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अब इस तरह से हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ पैचेस हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से सिमिलरली द फ्लक्स पासिंग थ्रू द अदर पैचेस आर एलिमेंट विल बी इक्वल टू, इस तरह से सेकंड का भी यही फार्मूला लगाएंगे, फाई टू इज इक्वल टू ई टू वेक्टर डॉट डेल्टा ए टू वेक्टर। ये दूसरे टुकड़े का, दूसरे पैचेस का जो है वो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तीसरे का इस तरह से फाई थ्री इज इक्वल टू ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री, ये इस तरह से अप टू सो ऑन। और लास्ट वाले पैच का जो है फाई एन इज इक्वल टू ई एन वेक्टर डॉट डेल्टा ए एन वेक्टर। तो हमने एन पैचेस का फ्लक्स जो है इस फार्मूले से निकाल लिया। फर्स्ट पैच का फाई वन इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन, इक्वेशन 1 कहलाएगी। इस तरह सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अदर पैचेस आर एलिमेंट विल बी इक्वल टू, सेकंड का फाई टू इज इक्वल टू ई टू, उस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E2 है और उसका वेक्टर एरिया जो है डेल्टा A2 है। सो दिस फार्मूला विल गिव द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑफ पैच नंबर 2, फाई टू इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2। तो ये हमें इक्वेशन 2 मिलेगी। इस तरह से इक्वेशन 3 में आप देखें कि फाई थ्री इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3, तीसरे पैच का जो है ये फ्लक्स आ जाए अप टू सो ऑन। हमारे पास n पैचेस हैं तो फाई n इज इक्वल टू ई एन वेक्टर डॉट डेल्टा n वेक्टर। अब इक्वेशन 4 कहलाएगी। तो हमने इस तरह से n पैचेस का फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। Thus, the total electric flux through a closed surface will be the sum of all these flux phi e। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस इज डिनोटेड बाय phi e। टोटल फ्लक्स जो है होल सरफेस का वो phi e के बराबर है। तो phi e इज इक्वल टू phi वन पहले पैच का, पहले एलिमेंट का फ्लक्स, प्लस phi टू दूसरे एलिमेंट का फ्लक्स, प्लस phi थ्री तीसरे एलिमेंट का फ्लक्स।
इनको आप डेल्टा फाई 1, डेल्टा फाई 2, डेल्टा फाई 3 अप टू डेल्टा फाई n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स बन रहा है, तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई 1 और फाई 1 प्लस फाई 2 और डेल्टा फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू डेल्टा फाई 3 अप टू सो ऑन इज अप टू डेल्टा एन फाई एन। ये इक्वेशन जो है, इसमें हमारे पास टोटल को हमने सम अप कर लिया, तमाम पैचेस का जो फ्लक्स हमने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया था उसको हमने सम अप कर दिया और ये फ्लक्स फाई ई के बराबर है। Now putting the values from equation 1, 2, 3 and 4 in equation 5 we get, as we know, इक्वेशन 1 में हमारे पास की वैल्यू मौजूद है, इक्वेशन 2 में मौजूद है, इक्वेशन 3 में अप टू इक्वेशन 4। तो इनकी वैल्यूज जो है वो हम पुट करेंगे। Putting the values from equation 1, 2, 3 and 4 in equation 5 we get फाई इज इक्वल टू के पहले पैच की पहले एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो ई वन डॉट डेल्टा ए वन वैक्टर ये आपके पास आ जाएगा, प्लस ई टू वैक्टर डॉट डेल्टा ए टू वैक्टर दूसरे एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, प्लस ई थ्री वैक्टर डॉट डेल्टा ए थ्री वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन एंड लास्ट पैच और एलिमेंट ई एन इज डॉट डेल्टा ए एन। ये क्वेश्चन 6 कहलाएगी। हमने क्या किया है, हमने टोटल जो है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तमाम जो पैचेस का फ्लक्स था, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, अप टू सो एन पैचेस का, उनकी वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर दी। ये क्वेश्चन 6 बन गई हमारे पास। अब इसमें आपके पास जो है एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड डेल्टा ए वेक्टर फॉर द ई सरफेस पैच आर इन सेम डायरेक्शन। फिगर में जैसे दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल है तो उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उनके दरमियान एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दस इक्वेशन 6 कैन बी रिटन है। फिर इक्वेशन 6 को जो है अगर हम इसमें लिखें तो फार्मूला जो है इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो फाई इज इक्वल टू ई वन वैक्टर डॉट डेल्टा ए वन वैक्टर की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा ई वन डेल्टा ए वन कॉस 0 डिग्री, या इसमें पहले आप cos थीटा 1 भी कह सकते हैं, लेकिन तमाम में क्योंकि एंगल सेम है तो इसलिए हमने उसमें टोटल की वैल्यूज पुट कर दी है। ई वन डेल्टा ए वन कॉस थीटा वन हमारे पास 0 डिग्री है तो इसलिए हमने लिख दिया। दूसरे का हम बात करें तो इसमें आपके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें ई टू डॉट डेल्टा ए टू कॉस 0। इसमें भी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई टू और डेल्टा ए टू इनकी सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 बन रहा है, इनमें भी थीटा 0 है तो इसलिए cos 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 की वैल्यू आ जाए, प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री cos थीटा थ्री की जगह हम cos 0 डिग्री ही पुट करेंगे तो ये तीसरे पैच की जो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने लिख दिया। अप टू सो ऑन लास्ट वाला जो पैच है वो ई एन डेल्टा ए एन cos theta n theta n also is equal to 0 डिग्री, that is why we put cos 0 डिग्री। इसलिए हम इसको भी cos 0 डिग्री ही पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें अब आप इक्वेशन को, तो ये इसकी फॉर्म बनेगी फाई इज इक्वल टू ई वन डेल्टा ए वन और cos 0 जो है वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा तो ये सिंप्लीफाई होकर ई वन डेल्टा ए वन रह जाएगा, प्लस ई टू डेल्टा ए टू cos 0 बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, सो ई टू डेल्टा ए टू, ये आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर दूसरे पैच की वैल्यू आ जाएगी ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री अप टू सो ऑन और लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू जो है ई एन डेल्टा ए एन। दिस इज इक्वेशन 7। The magnitude of electric intensity E at every point of the surface element
is the same because they are at the same distance from the center of sphere. इसमें आपके पास जो है तमाम एलिमेंट, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, उनकी वैल्यू सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं E1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू En विच इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब है कि तमाम इसकी वैल्यू E1 इज इक्वल टू E, E2 is equal to E, E3 is equal to E, up to so on En is equal to. So tamam, because they have the same value, that is why E1 is equal to E, E2 is equal to E, E3 is equal to electric intensity E, up to En is equal to E के बराबर इसको पुट करेंगे। Now equation 7 can be written as phi E is equal to E delta A1 E delta A2 plus E delta A3 up to E डेल्टा ए एन। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है E1 की वैल्यू पुट की तो वो भी E के बराबर, E2 की पुट की E के बराबर है, E3 की वैल्यू पुट की वो भी E के बराबर है, और लास्ट En इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। सो दिस इक्वेशन बिकम E, कॉमन ले लेंगे और इसमें आपके पास E मल्टीप्लाई delta A1 plus delta A2 plus delta A3 up to so on delta AN. Or we can write this equation phi E is equal to E into total surface area of the sphere. Total surface area delta A1, delta A2, delta A3 up to so on and delta AN. This is the total surface area of the sphere. Equation 8 कहलाएगी. As we know that value of electric intensity E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, एंड टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो इसकी वैल्यू जो है 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 8 वी गेट, हम इनकी वैल्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 8 में, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R स्क्वायर, और टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, वो इसके बराबर होता है 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल करें, R स्क्वायर को R स्क्वायर से कैंसिल करें तो आपके पास जो है phi is equal to Q over epsilon naught. So this is the result, phi E electric flux जो है Q over epsilon naught. This is the flux of total spherical surface. टोटल स्फेरिकल सरफेस का जो फ्लक्स है वो आपके पास कितना आएगा, phi is equal to Q over epsilon naught. रिजल्ट में हम देखें तो इसमें फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप और ज्योमेट्री, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज इन इट। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस का वो शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है मीडियम पे और उसके अंदर हमने चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ। इसका बी पार्ट हमने पहले जो है वो रेगुलर शेप ली थी, स्फीयर की फॉर्म में ली थी, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप, हम देखते हैं कि कोई इरेगुलर शेप का अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, उसकी क्या जो है वो। If we imagine that closed surface is not spherical in shape but in a form it has irregular shape, कैसी irregular shape है, ये हमारे पास जो है एस सरफेस है और इसके अंदर हमने एक स्फीयर लिया हुआ है, एक इरेगुलर शेप सरफेस है और इसके अंदर इस चार्ज को
इनक्लोज किया हुआ है, इमेजिनरी सरफेस है। इफ वी इमेजिन दैट क्लोज सरफेस इज नॉट स्फेरिकल, इसकी शेप जो है जैसा कि हमने कहा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड ज्योमेट्री बट इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मीडियम। सो if we imagine that closed surface is not spherical in shape but it has irregular shape, जैसे कि ये irregular shape है, तो a closed surface S is enclosing an imaginary sphere with the center at its position of charge Q। इसको हमने इसकी positive charge Q की position पे रखा हुआ है। It is seen that the value of electric flux through closed surface S and इमेजिनरी स्फीयर इज द सेम। इसमें हमने देखा कि इनके जो पहले हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया और इस सरफेस का फ्लक्स है वो सेम है। Thus, it is concluded that total flux through a closed surface does not depends upon the shape or geometry of closed surface, but it depends upon the medium एंड चार्ज इनक्लोज। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है, क्या इनक्लोज किया गया का मीडियम है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस। Prepare these two topics for next term. This is the homework. Thanks.